Hello, good morning students and welcome to our business studies class. Today we'll discuss another topic of our subject, that is sources of business finance. In our last videos, in our last lectures, we had already covered social responsibility, in which we had already seen that how a businessman should fulfill its social responsibility regarding the society, or whatever the business he is doing in the society, he should fulfill some of the responsibilities related to the society. So today we'll see sources of business finance, how a business should get finance, and what is the need of the finance, what is the requirement of finance in the business. The main focus of a businessman is particularly on finance. Without money, he cannot start a business, he cannot even grow up its business. So the main thing which requires to start a business is finance or money. Okay, so here I am with the slide or with the screen of your chapter sources of business finance. I'll read it out. Business is concerned with the production and distribution of goods and services for the satisfaction of needs of society. For carrying out various activities, business requires money. Finance therefore is called the life blood of any business. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, if you have to start any business, then first you have to required, what is the main basic requirement to start a business is finance. सो फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस. जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए. दिस सेम थिंग इज विथ द बिजनेस, कि बिजनेस के लिए भी जो लाइफ ब्लड है वो क्या है, वो फाइनेंस है. The requirements of funds by business to carry out its various activities is called business finance. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. The initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all financial requirements of the business. A business person therefore has to look for different other sources from where the needs for funds can be met. A clear assessment of the financial needs and the identification of various sources of finance therefore is a significant aspect of running a business organization. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चीज़ सामने आ रही है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई छोटा अमाउंट या केवल बिजनेसमैन की सेविंग्स ही नहीं होती जिससे वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाता है. द नेक्स्ट पैराग्राफ. The need for funds arises from the stage when an entrepreneur makes a decision to start a business. Some funds are needed immediately, say for the purchase of plant and machinery, furniture and other fixed assets. Similarly, some funds are required for day-to-day operations, say to purchase raw material, pay salaries, employees, etc. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको जो फंड है वो आपको फिक्स असेट्स के लिए भी चाहिए. आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, फिक्स असेट्स होती है हमारी, फिक्स असेट्स होती है जो हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स्ड है. हमने कुछ असेट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स असेट्स. उसके अंदर क्या है कि आपने एक टाइम पे परचेज कर लिया, अब आपको वो बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड असेट. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है. जैसे अब हमें बिजनेस करने के लिए लैंड चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है जिसके ऊपर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी एक दुकान ही क्यों ना हो या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो. तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बेसिकली हमें उसके लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी होती है आपकी, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो, जो टूल्स आप यूज कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने बिजनेस के अंदर, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए, उसमें भी हमें जो है फाइनेंस चाहिए उन चीजों को स्टार्ट करने. तो फिक्स्ड मतलब वो चीजें जो फिक्स्ड रहेंगी, आपने एक बार उसके अंदर पैसा लगा दिया, फाइनेंस जो है फंड्स लगा दिए, अपने पैसा लगा दिया बिजनेसमैन ने, और वो चीजें कहीं नहीं जाने वाली.
उसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जब बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स्ड कैपिटल जो है वो रखता है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, in order to start business, funds are required to purchase fixed assets like land and building, plant and fixtures. This is known as fixed capital requirement. The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time. बहुत लंबे टाइम के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स कैपिटल के लिए रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक बार लैंड खरीद लिया, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 दिन बाद आप जो है दूसरा रेंट खरीदोगे, दूसरी चीजें परचेज करोगे, जो मशीनरी है आप 4 दिन बाद चेंज कर दोगे, दूसरी मशीनरी लेके आओगे, ऐसा नहीं होता। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए आपने वो जो है वो चीज परचेज कर ली। नेक्स्ट है आपका जो आ रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। एक बार अगर आपने फिक्स एसेट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कुछ चीजें परचेज करी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार परचेज कर दिया उसके बाद आप परचेज नहीं करोगे। तो फिक्स एसेट्स का ये रहता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में क्या बोला है कि केवल फिक्स एसेट्स को ही परचेज करना ही सब कुछ नहीं होता बिजनेस के अंदर। जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं हमारे बिजनेस के, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और डे टू डे में आती है हमारी सैलरी, जो हमें सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देनी है। हर महीने हमें अपने एम्प्लॉय को क्या देनी है, सैलरी देनी है, हमारे वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड कराने हैं। तो ये सारी चीजें क्या किस में आती है, हमारी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में आती है। या हमें रॉ मटेरियल परचेज करना, अब प्रोडक्ट बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल तो खरीद के ही लेके आओगे ना कहीं से। तो रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आप अगर प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग यूज में ले रहे हो, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको सेलिंग टेक्निक्स जो है वो यूज करनी है, अगर आपको डिस्काउंट वगैरह देना है, जो भी चीज है उसके अंदर आपका क्या लगेगा, उसके अंदर आपका पैसा लगेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपकी डे टू डे चल रही है। फिक्स कैपिटल में तो क्या हुआ, फिक्स कैपिटल में तो आपने एक बार लगाई और वो एक बार में जो है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। पर वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में आप क्या करते हो, जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो डे टू डे ऑपरेशन में होता है, मतलब वो चलती रहती है, वो वाली चीज वो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, उसके बाद आओ, कुछ क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स के। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप कैसे जो सोर्सेज हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल करोगे। एक तो होता है पीरियड के बेसिस पे, या तो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो। फिर आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फिर आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपके कैसे आपके पास जो है सोर्सेज होते हैं फंड्स रेज करने के लिए, आप कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हो। सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो होता है इक्विटी। इक्विटी होता है आपकी इक्विटी शेयर्स। जब आपकी कंपनी में लोगों ने जो है शेयर्स परचेज कर रखे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था शेयर्स क्या होते हैं, जो आपकी कैपिटल होती है कंपनी की, ठीक है, जो आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, उसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, और उन छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। तो उन शेयर्स को जब कोई पर्सन बाहर का खरीद रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके पास फंड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है इक्विटी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने अभी तो इक्विटी का एग्जांपल दिया, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फंड्स रेज कर सकते हो, अपने बिजनेस के अंदर पैसा लेके आ सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है, ऑब्वियसली अगर हम कभी भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हाउ वी विल स्टार्ट दैट बिजनेस। फर्स्ट द मेन थिंग इज मनी, हमें पैसा चाहिए, वी नीड फाइनेंस, वी नीड फंड्स। कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा जिससे हम वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। द पर्सन हु इज हैविंग द क्वालिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसके अंदर स्किल्स हैं, जिसके पास क्या है, स्किल्स हैं, सारी चीजें हैं उसके पास, पर अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। कई लोग लोन ले लेते हैं, लोन लेके जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वो वाली चीज भी हम पढ़ेंगे, लोन वाली चीज भी पढ़ेंगे। कई लोग जो है अपने शेयर्स बेचते हैं मार्केट में, जैसे शेयर्स की मैंने बताया कि लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं उन शेयर्स को, और लोगों के पास क्या आता है, पैसा आता है।
ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों ने सुना हो शायद। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी यही होता है, जो उनकी कंपनीज होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो जाती हैं। बाकी ये तो थोड़ा हायर चीज हो जाएगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगी इतनी जल्दी। ठीक है, तो मेनली बस अभी आपको ये देखना है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो फाइनेंस हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैंने आप लोगों को बता दिया। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जिसके अंदर हम जो है हमने एक टाइम इन्वेस्टमेंट करी है, हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें हमारी फिक्स रहेंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये हमारी फिक्स्ड है। फिर उसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब जो डे टू डे चल रहा है मतलब वर्किंग में है, खत्म नहीं हुआ है। जो खर्चे हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के, ये हमारे सामने डेली आएंगे। आपको किसी की सैलरी देनी है, आपको जो है रेंट पे करना है, अगर आपका जो बिल्डिंग है वो रेंट पे है, आपकी बिल्डिंग, आपको उसका रेंट पे करना है। या आपको जो है आपका जो बिजनेस है मेनली वो ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है, आपके ना ट्रक का बिजनेस है मान लो। लोगों के ट्रक के बिजनेस भी होते हैं ना, ट्रक जो होते हैं वो लोडिंग गाड़ियां जो होती है उनका बिजनेस होता है। तो उसमें जो पेट्रोल का खर्चा लग रहा है या जो मेंटेनेंस का लग रहा है, ट्रक के मेंटेनेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे में चल रहा है। आपका कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल की तो जरूरत डेली पड़ती है। ठीक है, सैलरी हो गई एम्प्लॉय की, वो भी आपको हर महीने ही देनी है। वेजेस हो गए वर्कर्स के, वो भी आपको हर महीने देने हैं, जैसे भी डे टू डे बेसिस पे। तो ये चीजें क्या होती है, हमारे बिजनेस फाइनेंस के अंदर आती है। आज मैंने आपकी क्लास जो है ऐसे प्रेजेंट की है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि हमारी क्लास जो हो वो एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर पे हो, जिसपे मैं सामने आप लोगों के आऊँ और हम लोग एक प्रॉपर जो है क्लास रखें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मुझे आप लोगों को बताना था, और सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये जो है, ये आप लोग पढ़ लेना। मैंने एनसीईआरटी में से आज आपको पढ़ाया है। आपके पास बिजनेस स्टडीज की जो पूनम गांधी है वो भी है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। दोनों के अंदर मटेरियल सेम है, ऐसे कुछ जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बस थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी मतलब वही है दोनों के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।